Chalo, Bismillahirrahmanirrahim. So we were studying the normalization, and so far we have studied 2NF, that is the second normal form. And today we will start with the third normal form, or 3NF. So what is the definition of 3NF? A relation is said to be in 3NF. If it is in 2NF, that means we are moving step by step. First of all, we performed the rule of 1NF, so brought it in 1NF. Then we brought it in 2NF. When it is in 2NF and still we have anomalies, then we check that there must not be any transitive dependency in it. उसमें कोई transitive dependency नहीं होनी चाहिए उसके अंदर. So normalization में 3NF is what? A relation is in 3NF if it is in 2NF and there is no transitive dependency. Now check what is transitive dependency. मैं इस बच्चे को बुला लूं ताकि इसका लॉस ना हो. एक सेकेंड यार. अच्छा वो जा ही चुका है, ठीक हो गया. इसलिए कहता हूँ वक्त पर आ जाओ थोड़ा सा, तो यार इतना टाइम जाया ना हो ना. 10 मिनट तो 9 मिनट तो हमने जाया किए हैं. चलो आप देखो ट्रांजिटिव क्या होता है. इफ अ नॉन की एट्रीब्यूट, नॉन की मीन जो प्राइमरी की नहीं है, दैट इज नॉट अ प्राइमरी की. इफ अ नॉन की एट्रीब्यूट डिटरमिन्स द वैल्यू ऑफ अनदर नॉन की एट्रीब्यूट, एक या एक से ज्यादा नॉन की वैल्यू बताने लगे. कौन? जो कि खुद भी नॉन की है, प्राइमरी की नहीं है लेकिन वैल्यूज बता रहा है. then this phenomena is known as transitive dependency. चेक करते हैं बेटा, जरा देखिएगा इसको. Say we have a relation R. R एक टेबल है and attributes A, B, C, D, E. Now A determines B, C, D, E. अगर A सबकी वैल्यू बताए और A प्राइमरी की हो, then you have studied that it is known as full functional dependency. There is A, B, C, D, E, all four attributes are dependent upon A. So this is full functional dependency. But if it happens that D, check, D is not the primary key, it is a non-key. If it determines the value of another non-key attribute, for example, E, then this is known as transitive dependency. Non-key किसी और non-key को बताना शुरू कर रही है. So check. Now we have A that determines B, C, D, E. Old concept है जो हमने पढ़ा हुआ था, and we used to call it full functional dependency. याद है कि नहीं? पहले ये बता दो मुझे. चलो जी सर. So now the new thing is we have a non-key attribute that is not part of composite key or anything, but it is telling me the value of E. So when D, there is a non-key attribute, determines E, then this is known as transitive dependency. And the condition for a relation to be in 3NF is it must be in 2NF and there must not be any transitive dependency in it. तो हमें पता चला, अब मैं उर्दू में बता देता हूँ कि अगर एक टेबल हो जो 2NF में हो लेकिन उसमें कुछ ऐसा हो जाए कि एक ऐसा एट्रीब्यूट, एक ऐसा कॉलम जो कि प्राइमरी की नहीं है और वो बाकी किसी और एक या ज्यादा एट्रीब्यूट्स की वैल्यू बताए, तो हम फौरन कहते हैं यार ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, इसको खत्म कीजिए, फिर ये 3NF में आएगा. पहले बताओ ये कॉन्सेप्ट किस किस को समझ नहीं आया? फिर आगे आ तो गया मैं बाकियों को भी, क्योंकि मैं यार बिल्कुल मैं बहुत सीरियस हूँ कि अगर मैं मेहनत करूं तो मुझे इसका रिजल्ट मुझे मिलना चाहिए. आपको तो इंशाल्लाह मिलेगा, नकल के बगैर मिलेगा. अगर नहीं नकल करोगे तो. अब देखो जरा, देखो बेटा चीज पे गौर करना. मेरे पास ये एक टेबल है, प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट टाइटल, टीचर आईडी, टीचर नेम एंड डेजिग्नेशन. So now these are 5 attributes of the table project. And now the condition is one project can be supervised by only one teacher. P1 is being supervised by only Dr. Asim, but one teacher can supervise by any project. Dr. Asim Sahab is supervising P1, P2, and P3. So this is the relationship. Now, if I check for the anomalies, who will help me to check for the anomalies? Anybody? Insertion, modification and deletion. मैं फिर कह दूं, दिस इज सो इजी. टीचर्स कहते हैं छोड़ दें, अच्छा इतना सा कर लें, यार इसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ती. मैं आपको चीज बता दूं, ये आपकी उंगलियों और जबान की टिप पर होनी चाहिए. बंदा बात करे, आप जहन में लाएं यार रिपीटिंग ग्रुप, यार पार्शियल डिपेंडेंसी, यार ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, और आप फौरन जवाब दिया करें. इनॉमलीज आपको पता हो.
ताकि पता चले कि हाँ जी ये स्पेशलिस्ट हैं, ये कंप्यूटर साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं। तो अब जरा मुझे जल्दी से बताओ, लेट मी नो दैट दिस इज द टेबल, इट कंटेन्स एनी कैन आई, चलो मैं सवाल यूं कर देता हूँ, कैन आई इंसर्ट a new project P5 in this table easily, or will it stop me? सर हम इंसर्ट कर सकते हैं। हाँ, हम्म, इंसर्ट कर सकते हैं, एक्सीलेंट। ये कौन बच्चा है, नाम बताओ जरा, बताइए। सर मोहम्मद तकीउर रहमान। मोहम्मद जकीउर रहमान। जकीउर रहमान। जकी, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ठीक आपने बताया, मजाक कर रहा हूं मैं कि सर वी कैन इंसर्ट P5 फॉर एग्जांपल मैथ्स डेटाबेस, और टीचर कोई भी ना हो, नल रह सकता है क्योंकि ये प्राइमरी की नहीं है। एंड देर इज वाई आई सेट कि मैं सेपरेट करता हूँ 2NF और 3NF को। नॉर्मली यू किड स्टार्ट थिंकिंग कि यार यहाँ पे भी तो कुछ होना था, नहीं, इट इज नॉट अ प्राइमरी की, ये 2NF नहीं है। सो इंसर्शन एनॉमली अब जरा चेक करना, जकी तुमने ही जवाब देना है मुझे अभी। कैन आई इंसर्ट अ न्यू टीचर T3 इमरान सईद असिस्टेंट प्रोफेसर? यस सर, जब हम टीचर वो इंसर्ट करेंगे तो साथ उसको प्रोजेक्ट भी असाइन कर देंगे तो हो जाएगा। प्रोजेक्ट का तो मैंने बात ही नहीं की, मैं जान के तुम्हें फंसा लिया है अब मैंने, अब बोलो। सर इस तरह फिर मुश्किल नहीं कर सकते हम। नहीं कर सकेंगे सर, अगर उसका आपका सवाल बनता था कि सर उन, माइक ऑफ करो सर, अगर उन टीचर को आप कोई प्रोजेक्ट देंगे, ओनली इन द केस व्हेन देयर इज अ प्रोजेक्ट फॉर सर इमरान, देन वी कैन एंटर हिम। अदरवाइज T3 Imran assistant professor cannot be brought into this table because he does not have any project. So insertion anomaly है या नहीं? जी सर है। Now check what is the modification anomaly in it, or there is no modification anomaly. IIU database appears only once. TTV database appears only once. So is there any modification anomaly in it? सर बेटा आप आप सुनो, दोबारा। देखो मेरी बात सुनो। आप अगर 15 बच्चे भी आ गए हो तो यार सब जाग जाओ। देखो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, पढ़ाता हुआ गुजर जाऊंगा। नुकसान क्या होना है, जब कभी आप जॉब पे जाओगे ये चीजें इंटरव्यूज में आती हैं, तो अल्लाह का वास्ता अगर आ ही गए, जो नहीं आए उनको तो 21 तोपों की सलामी है, लेकिन जो आ गए हो यार वो तो जागो। मैं क्वेश्चन दोबारा दोहराता हूँ, इज देयर एनी मॉडिफिकेशन इनॉर्मली इन दिस टेबल? नहीं सर। नहीं है। एनीबडी एल्स? व्हाट वाज द मॉडिफिकेशन इनॉर्मली गाइस? बेशक उर्दू में बताओ, मुझे मसला नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए इंग्लिश में चल रहा हूँ कि कोई फॉरेनर इसको, आपकी क्लास में या आपके दूसरे सेक्शन में 3 फॉरेनर्स हैं, वो इसको देखें तो उनको समझ में आए। चलो हाँ जी। सर हमारी क्लास में फॉरेनर्स पहले हुए नहीं है। ना हो, मैं उर्दू में भी पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश में भी, दोनों में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ उर्दू में जवाब दे दो यार, जवाब तो दो मुझे। सर जैसे आपने मॉडिफिकेशन पिछले पिछले में बताया था कि अगर जैसे एक वो था, नाम था आसिम, अगर वो नाम क्या कहते हैं अपना बंदा चेंज मतलब चेंज होता उसका आमिर सईद के ऊपर, तो वो अगर उस क्या कहते हैं टेबल के अंदर जितने क्या कहते हैं उस हिसाब से लड़के होंगे, मतलब एक ही नाम के उसने एक मिनट सर, उतनी दफा चेंजेस करनी पड़ेंगी, उतनी यही दफा कह रहे हो? चेंजेस करने, जैसे उतनी दफा चेंजेस करनी पड़ेंगी तो वो बहुत ज्यादा क्या कहते अब वो हो जरा जाएगा अब जरा कॉम्प्लेक्स। अब जरा इसी टेबल को तुम सारे, अब 15 लोग और से देखो। अगर डॉक्टर आसिम, जिनका के पूरा नाम है आसिम मुनीर साहब, अगर वो कहते हैं कि मुझे आपने डॉक्टर आसिम लिखा है, यार मेरा नाम तो सही लिखा करें, डॉक्टर आसिम मुनीर लिखे, तो बेटा इस टेबल में कितनी दफा चेंज करना पड़ेगा? सर ये 3 दफा। तो जवाब तो गलत हो गया, इसका मतलब है मॉडिफिकेशन एनॉमली भी इसके अंदर मौजूद है। पहले बताओ हाँ या नहीं। यस सर है। यस सर सर। इफ यू वांट टू मॉडि, अब जो जाग रहे हैं ना उन्हें अब मजा आना शुरू हो गया, यार ठीक है, डॉक्टर आसिम मुनीर, डॉक्टर आसिम मुनीर, डॉक्टर आसिम मुनीर, so we will have to make this change for multiple times, so this here we have modification anomaly. And what about the deletion anomaly? देखो मैं तुम्हें हिंट दे दूं, तुम्हें फौरन जवाब आ जाए। इफ आई डिलीट द प्रोजेक्ट P4,
Is there any issue in deleting that project? I want to delete only project data. सर ये हो जाएगा। मैं चपेड़ मारूंगा इसमें से गुजर के, ठीक है ना? सर तुम चुप करो, बिल्कुल नहीं बोलना। हाँ जी, कोई और लड़का इसके साथ फाइट कर सकता है आर्ग्यूमेंट्स में? ये कह रहा है कि मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, चलो, कि जी इनका ये कहना है कि P4 इमेज डिलीट कर रहे हैं तो कर दें, हो जाएगा, कोई नुकसान तो नहीं होने वाला? सवाल में ही जवाब है। तुम खुद जवाब दे सकते हो, अब तुम्हें शायद समझ में आ जाए। मैंने क्या डिलीट करना था, जवाब दो। सर आपने कहा था इमेजेस प्रोजेक्ट। P4 इमेज है ना? जी सर। तो देखो, प्राइमरी की जब डिलीट हो जाएगी तो क्या T1 माजिद साहब इस टेबल में रह सकेंगे? नो सर। सर सारा डिलीट हो जाएगा। अब बोले हो तो क्या मतलब हुआ इसका, उर्दू मीडियम्स? यानी कि सर इसमें डिलीशन है ना, वो जो है वो नहीं हो सकती, एनॉमलीज वो नहीं होगी इसमें। डिलीशन एनॉमली तो है। डिलीशन एनॉमली क्या होती है? व्हेन वी ट्राई टू डिलीट सम डेटा, वी लूज द डेटा दैट वी डू नॉट वांट टू डिलीट। जब हम कुछ डिलीट करते हैं तो हमसे वो भी डिलीट हो जाता है जो हम डिलीट नहीं करना चाहते। तो हम यहाँ पे क्या नहीं डिलीट करना चाह रहे? सर ये तो हम माजिद बशीर लेक्चर, हम माजिद बशीर साहब को या मिस्टर माजिद को हम डिलीट नहीं करना चाहते किसी भी तरह, लेकिन अगर इस टेबल में डेटा रखा जो कि गलत टेबल है, तो जो ही P4 को आप डिलीट करेंगे तो पूरा रिकॉर्ड डिलीट होगा और हमारे पास से टीचर भी गायब हो गया। तो दिस इज रॉन्ग। वी हैव ऑल 3 anomalies in this table. We cannot insert a teacher unless he has a project. उर्दू में सुन लो, हम एक नया टीचर ऐड नहीं कर सकते जब तक कि हमारे पास कोई प्रोजेक्ट ना हो। If we have to change the details of teacher, उसका नाम या डेजिग्नेशन, तो हमें कई दफा चेंज करना पड़ता है। And when we delete some data, for example P4 image, we also lose the information of the teacher. तीनों anomalies हैं। पहले बताओ बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। जी सर। अब जरा तुम लोगों में से जो जाग रहे हैं और इसको एंजॉय करना शुरू कर दिया, उन्होंने कहा यार ये तो ठीक है, वी आर कमिंग बैक। हमने परसों नहीं पढ़ा था सर के जाने के बाद या दोबारा, लेकिन अब रिवीजन हो गई है, सर ने एनॉमलीज दोबारा समझा दी। आ जाओ जरा 1NF पे। व्हाट इज 1NF? अब इसको हम देखो, व्हाट वाज द प्रोसीजर व्हेन देयर आर एनॉमलीज, वी गो फॉर द नॉर्मलाइजेशन। जब हमारे पास एनॉमलीज आएंगी हम नॉर्मलाइजेशन पे जाएंगे। सो द 1NF इज, सर उसके अंदर रिपीटिंग ग्रुप नहीं होना चाहिए, उन्होंने कहा। एक्सीलेंट। तो रिपीटिंग ग्रुप कैसे खत्म करें इसमें से, अब बताओ। सर कंपोजिट सर ये बना देंगे। सर टाइटल जो टीचर आईडी है उसको भी आप वो बना दें प्राइमरी की, बस तो अब कंपोनेंट प्राइमरी। बस देखो, मैंने प्रूफ करना था और मैंने कर दिया कि मेरी क्लास अन्यवा चलती है। ये सब रिकॉर्ड भी हो रहा है, मुझे ध्यान है, लेकिन अब मैं कैसे अपने ऊपर काबू रखूं? लड़कों पहले चेक तो करो मेरा बेटा, इसके अंदर क्या, इसके अंदर रिपीटिंग ग्रुप है या नहीं। तमाम वो जो होते हैं ना पेडू भेड़े, उनकी तरह अंधेवा जाके दोनों पे लाइनें लगा देते, और ये फाइनल एग्जाम में 20 नंबर का क्वेश्चन होता है और आप ये कर जाते हो। अब जरा चेक करो पहले रिपीटिंग ग्रुप है कि नहीं। वी विल चेक फॉर द रिपीटिंग ग्रुप। सो आई टोल्ड यू पुट योर फिंगर ऑन द प्राइमरी की वैल्यू। मैंने P1 के ऊपर हाथ रख लिया। नाउ टेल मी हाउ मेनी प्रोजेक्ट टाइटल विल यू गिव मी फॉर P1? बोलते जाओ। सर एक। How many? Only one. Okay. How many teacher ID can you give me for P1? Only one, sir. Sir, one. How many names you can give me? Sir, one. Designations? One है सर। मैंने शुरू में एक जुमला बोला था कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट को एक ही टीचर सुपरवाइज करेगा। कहानी याद आई कि नहीं? Yes, sir. तो अगर एक प्रोजेक्ट को एक ही टीचर है तो प्रोजेक्ट का टाइटल तो है ही एक, उसका टीचर आईडी भी एक है, नेम भी एक है, तो इसका मतलब है इसमें रिपीटिंग ग्रुप है? नहीं सर, इस तरह तो नहीं है। हाँ, आज किताब पे 10 दफा लिखना कि तुम खोते हो, यानी अपने बारे में लिखते रहना। मैं खोता हूँ यानी मैं नहीं, तुम। ठीक हो क्या? लिखना इसको। एकदम से जवाब देते हैं और बगैर सोचे देते हैं। अच्छा, अब इसमें जरा आओ, पार्शियल डिपेंडेंसी कौन किस पे डिपेंडेंट है, जरा जल्दी से बताओ। पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होती है, पहले वो बताओ। सर ये प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट टाइटल। प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट पार्शियल टाइटल तब होगी ना
जब यानी कि दो कंपोजिट की हो तब पार्शियल होती है, यहाँ पे एक है जैसे प्रोजेक्ट आईडी एक्सीलेंट। है ये फुल हो जाएगी। तूने बचा लिया इसको, वरना ये कर गया था काम अभी ना। ये दूसरा बच्चा बोल रहा है ना, इसने पटाखा फोड़ दिया था। ये पता क्या बोलने लगा था, सर प्रोजेक्ट आईडी प्रोजेक्ट टाइटल को कर रहा है और टी आईडी टी नेम और डेजिग्नेशन को, यही बोलने लगा था कि नहीं? जल्दी से बता दे लड़के। सर मैं कह रहा था कि प्रोजेक्ट आईडी प्रोजेक्ट टाइटल के साथ है, मैं ये कहने लगा था। ये तो हो गया, और बाकी टी नेम डेजिग्नेशन किसके साथ है? सर वो सर टीचर के साथ है ना। प्रोजेक्ट आईडी प्रोजेक्ट के साथ प्रोजेक्ट आईडी और प्रोजेक्ट टाइटल है, हाँ हाँ। और टीचर के साथ टीचर आईडी टीचर नेम अब मेरी बात टीचर सुनो, नेम है। तुमने अभी भी इसका जुमला गौर से नहीं सुना दूसरे बच्चे का। हाँ जी, तुम बताओ, तुमने अभी बोला है कि कॉम्पोजिट, या तुमने जो भी बोला है वो बोलो। तुम कॉम्पोजिट प्राइमरी की का हवाला दे रहे हैं, जरा बता दो अपना जवाब। यानी कि सर जो पार्शियल है वो तभी होती है जब कंपोजिट की हो, मतलब कि एक पे Very डिपेंड है good. हाफ और एक हाइट पे, जब मतलब देखो एक इसने सिंगल क्या हो जैसे किया। यहाँ पे है। हाँ, अब देखो इस जवाब क्या दिया। इसने कहा सर वो तो 2NF में पार्शियल तब होगी जब ये कॉम्पोजिट की बनती, ये तो कॉम्पोजिट की बने बगैर यहाँ तक पहुंच गई है। रिपीटिंग ग्रुप नहीं था तो कॉम्पोजिट की नहीं बनी, तो ये यहाँ तक आ गया है। सर अब तो आप पार्ट की बात ही हमारे साथ ना करें, क्योंकि पार्शियल तब होती जब इसके नीचे भी लाइन होती, इसके नीचे भी, फिर हम कहते इस वाले पार्ट पे ये डिपेंडेंट है और इस वाले पार्ट पे ये दो डिपेंडेंट है। तो लिहाजा देखो, सुनो बहुत गौर से, और ये तुम एग्जाम में गलतियां करते हो। यहां पर ये पहले ही 2NF में है, तुम नीचे लिखोगे इट हैज नो पार्शियल डिपेंडेंसी, सो इट इज ऑलरेडी इन 2NF, ये पहले से ही 2NF में मौजूद है। तो देखो पहले बताओ तुम, जब बात समझ में आई कि नहीं? ये कॉम्पोजिट की नहीं है, तो लिहाजा ये देखो PID क्या कर रहा है, वो सबको डिटरमिन कर रहा है, प्रोजेक्ट टाइटल, टीचर आईडी, टीचर नेम, डेजिग्नेशन, सारों को फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। सर अब क्या करें? मैंने कहा 3NF में क्या करते हैं, जरा चल के बताओ 3NF में क्या करते थे, जरा ये देखो। हाँ जी बताओ जरा। 2NF में होना चाहिए और उसके अंदर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। वेरी गुड। 2NF का मतलब तो ये हो गया कि वो पहुंच गया 2NF में बगैर कॉम्पोजिट की बने, क्योंकि उसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी थी नहीं, तो वो पहुंच गया। अब 3NF के लिए ट्रांजिटिव ढूंढनी है। अब जरा यहाँ पे गौर करते हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम लोग बताओ सारे। देखो बेटा, अगर मैं तुम्हें टीचर आईडी दूं, ये एक खानदान है पूरा बैठा हो, देखना क्या होगा। अभी टीचर आईडी दूं तो क्या तुम मुझे टीचर नेम बता सकते हो? नो सर। ये नो सर किसने कहा? इसको तो ना लैपटॉप में से निकाल के मेरी तरफ भेज दो, उसकी पिटाई हो। नहीं सर, सर मतलब बताओ। अगर जैसे T2 है, T2 दो है ना, तीन है बल्कि, तो इस तरह नहीं, लेकिन सिंपल हो तो फिर हम बता सकते हैं। ए अजीम इंसान, क्या ये तीन मुख्तलिफ वैल्यूज हैं, एक ही वैल्यू है? तुम इसको रिडंडेंट तो कह सकते हो, लेकिन तुम इसको कभी नहीं कह सकते कि ये तीन अलग लोग हैं, तीन वैल्यूज हैं। डॉक्टर आसिम तो वही है, वो तीनों जगह पर मौजूद हैं, क्योंकि एक टीचर कई प्रोजेक्ट्स ले रहा है। तो अगर मैं तुमसे कहूँ T2 का नाम बताओ, तो क्या एक से ज्यादा नाम मिल रहे हैं तुम्हें? नहीं सर, एक ही है। एक ही है। कितने डेजिग्नेशंस मिल रहे हैं? सर एक ही। एक ही सर। तो अब तुम नोट करो मेरा बेटा कि यहाँ पर तो ये मेरे पास T2 दूंगा तो नाम भी पता चल जाएगा, T2 बताऊंगा तो डेजिग्नेशन भी पता चल जाएगा। इसका मतलब है कि T2 जो है ना, ये कोई चौधरी साहब है, जो कि प्राइमरी की नहीं है। इट इज नॉट अ प्राइमरी की, बट इट इज टेलिंग अस द वैल्यूज ऑफ टी नेम एंड डेजिग्नेशन। सो आई राइट इट लाइक डाउन TID, ये एरो मैंने कहा था डिटरमिन होता है, ठीक है, डिटरमिन्स के लिए यूज करते हैं। तो TID डिटरमिन्स टी नेम एंड डेजिग्नेशन, ये इन दोनों को बता रहा है, नॉन की को बता रहा है। सो दिस इज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। transitive dependency. So now check what is the solution. We make a new table and take all the attributes of transitive dependency in it. हम क्या करेंगे? हम एक नया टेबल बनाएंगे जिसमें टीचर आईडी, टीचर नेम, डेजिग्नेशन को ले जाएंगे और टीचर आईडी को प्राइमरी की बना देंगे। पहले बताओ यहां तक क्लियर है? ये देखो, Yes, sir. इसका एक टेबल बनेगा, टीचर आईडी, टीचर नेम, डेजिग्नेशन का बन गया जी। सो नाउ वी हैव रिमेनिंग प्रोजेक्ट आईडी एंड प्रोजेक्ट टाइटल, ये दो रह गए इधर, तो ये अपने ही टेबल में रहेंगे, और जो टेबल इनसे अलग होकर गया है उसकी प्राइमरी की यानी TID
इस टेबल में एज अ फॉरेन की रहेगी, देखो जरा, बट द ओरिजिनल टेबल कंटेन्स द रिमेनिंग कॉलम्स along with the primary key of new table as foreign key। तो वो उसकी की को वापस लेकर आएंगे और उस फॉरेन की वजह से ये टेबल्स जुड़े रहेंगे। देखना जरा कैसे, ये देखो यहाँ पे क्या रह गया था, ब्लैक वाला देखना, प्रोजेक्ट आईडी एंड प्रोजेक्ट नेम, and now in order to relate them we brought this TID into this table as a foreign key। Getting me or not? Yes, sir. Now if I ask you who is supervising P2 project 2? Sir Asim. Dr. ये देखो Asif. P2 से पीटीवी डेटाबेस T2, घूमो यहाँ पर आओ T2 डॉक्टर आसिम, और आपने फौरन बता दिया। और अगर मैं कहूं कि डॉक्टर आसिम कौन सा प्रोजेक्ट सुपरवाइज कर रहे हैं तो क्या बताओगे, सोचो। सर ये P1, P2, P1, P3. P2, P3। वेरी गुड, आप T2 लोगे, आप फिर वापस आओगे T2 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 और यहाँ तक P1 P2 P3। तो देखो अब समझ में आया कि लॉजिकली रिलेटेड भी हो गया, जुड़ भी गया, और ये काम कैसे करता है। जी तो ये है 3NF। मुझे बताओ कितना मुश्किल है। सर, इतना लेकिन सर मुश्किल इसमें थोड़ा ये नहीं हो जाएगा कि प्रोजेक्ट अलग का टेबल होगा, टीचर का अलग, थोड़े अलग, मतलब इसको करना पड़ जाएगा हमें। अच्छा आप मुझसे एक बात सुनो, जरा इनॉमलीज याद करो। क्या अब जरा सुनना और तुम मुझे जवाब दोगे, तुम ही जवाब दोगे। अब इफ आई वांट टू ब्रिंग अ न्यू टीचर T3 इमरान असिस्टेंट प्रोफेसर, कैन आई इंसर्ट, या अभी भी नहीं इंसर्ट होगा, वो बताओ। सर अब तो हो जाएगा ना सर। इनॉमली खत्म हुई, एरर खत्म हुआ या नहीं? हो गया सर। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, इफ आई वांट टू मेक डॉक्टर आसिम नेम एज डॉक्टर आसिम मुनीर, फॉर हाउ मेनी टाइम आई विल हैव टू डू दैट? One सर time. एक दफा ही, बिल्कुल। मॉडिफिकेशन नॉर्मली गुम हुई या नहीं? Yes, sir. यस सर। If I delete a project P3, will it affect Dr. Asim Munir? No, sir. नो सर। तो देखो तीनों इनॉमलीज चली गई, बेशक ये अलग हुए। तो देखो तुमने एक बात नहीं सोची, तुम बच्चों को मैंने पहले दिन से लेके चला हूं, टीचर, स्टूडेंट, कोर्स, प्रोजेक्ट एंड फील्ड, याद आ रहा है? जी सर। Yes, sir. तुम्हें याद आया कि स्टूडेंट के नीचे यहाँ पर प्रोजेक्ट था, यहाँ पर टीचर था, और नोट करो कि ये दोनों आपस में ऐसे जुड़े थे कि वन टीचर कैन टेक मैनी प्रोजेक्ट्स बट वन प्रोजेक्ट विल बी सुपरवाइज्ड बाय ओनली वन टीचर। यस और नो? यस सर। एक्सीलेंट। अब ये बताओ किस ने फॉरेन कीज वाला लेक्चर पढ़ा था, साफ साफ बताना। सर फॉरेन की वाला। हाँ, जिसमें मैंने ये बताया था कि रिप्रेजेंट रिलेशनशिप। जी सर, मैंने देखा था फॉरेन की वाला। चलो एक जवाब दो। अगर हमारे पास बाइनरी वन टू मैनी हो, बाइनरी वन, पहले ये बता दो यार, तुम आईसीएस तो नहीं हो भाई, आईसीएस तो नहीं हो लड़के? नहीं सर, प्री इंजीनियरिंग। प्री इंजीनियरिंग हो। बस मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई लड़का आगे निकल के भागे और बाकी कहें यार उसको तो आना चाहिए था क्योंकि वो प्री इंजीनियरिंग का नहीं था। तो प्री इंजीनियरिंग वाले सिर्फ जवाब दे सकते हैं ताकि बाकियों को शर्म आ जाए थोड़ी सी। तो ये मुझे बताइए कि क्या था। आप नोट्स भी खोल सकते हो, अपनी प्रेजेंटेशन भी, जो भी तुमने खोलना है खोल लो उधर बैठ के बुक्स को। ये बताओ जब वन टू मैनी बाइनरी होता है तो फॉरेन की को क्या करते हैं? नया टेबल बनाते हैं जैसे कल हमने बनाया था 2NF में, या क्या करते हैं बोलो? सर बाइनरी वन टू मैनी में जो वन साइड का होता है ना प्राइमरी की, उसको हम क्या कहते हैं मैनी के क्या कहते हैं टेबल में ले जाते हैं एज अ फॉरेन की। एक्सीलेंट, वेरी गुड। अब तुम प्री इंजीनियरिंग हो है ना? जी सर। कल कोई धब्बा ना लग जाए कि जी उस सर इमरान ने इसको खास ट्यूशन दी थी या ये आईसीएस था। तो देखो बात सुनो यहाँ से जरा, क्योंकि ना मुझे तुम्हारा नाम नजर आ रहा है ना मैं तुम्हें जानता हूँ। अच्छा अब देखो जरा, मैंने अगर मैं ERD बनाऊं तो इनके बीच में एक लाइन और डायमंड आएगा और यहाँ पर बनेगा वन प्रोजेक्ट कैन बी सुपरवाइज बाय ओनली वन टीचर, और यहाँ पे क्रो फीड बनेगा, वन टीचर कैन टेक मैनी प्रोजेक्ट्स। तो जो मैंने पढ़ाया था इस बच्चे ने वही पढ़ा है, और अब ये मुझे बता रहा है कि सर वन वाले की प्राइमरी की को आप मैनी में ले जाएंगे तो ये एरर नहीं देगा। लेकिन अगर आपने यहाँ से PID को उठाया और आप उसको यहाँ ले आए तो आप अजियत में आएंगे। कोई बता सकता है कैसे?
हाँ जी। सर ओके, लेट्स प्ले अ गेम। मैं तुम लोगों को बिल्कुल क्लियर करके जाना चाहता हूँ ताकि इंशाल्लाह यार कोई तो उठे, कोई तो कहे कि हाँ हमें आता है, ताकि कुछ मजा आना शुरू हो इसका। और मैं अब यहाँ से फंस गया हूँ, मैंने सब कुछ हटा दिया, ठीक है। अब मेरा दिल ये चाहता है तुम लोगों को ना इसके नोट्स भी, इसकी रिकॉर्डिंग भी ना दी जाए, ताकि तुम लोगों को बिल्कुल रोजाना जागने की, सुबह सुबह उठ के दांत ब्रश करके नाश्ता करके बैठने की आदत पड़े। लेकिन एनी हाउ लेट्स डू इट। बल्कि मैं इसके बजाय तुम्हें अगर मैं एक्सेल में ले जाऊं एंड आई डू इट लाइक पैलेस्टाइन वाला, तुम्हें वो मैसेज मिल गया था सब बच्चों को? सर क्या? फलस्तीन वाला मैसेज मिल गया था कि नहीं? नहीं सर। नो जिसको सर। जहां मौका मिले डोनेट करो और उसको उसमें हिस्सा लो, बेशक 10 रुपए ही डालो, उनको खाना पहुंचवाओ उन लोगों को, ठीक है। हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन आपको जहां आसानी हो आप वहां पर करो। मैंने सीआर से कहा था कि हर बच्चा अपनी पॉकेट मनी से 10 रुपीज डालकर जहां से भी उसको आसान लगे वो भेजे, ताकि तुम्हारा हिस्सा शामिल हो इस मुश्किल वक्त में उन लोगों के लिए, ठीक है। तुम लोगों को मैंने रमजान में इसलिए इन्वॉल्व नहीं किया था, ऑल्दो हमने डोनेशंस लिए थे, लेकिन हम सीनियर्स जो पास आउट हो जाते हैं उनसे ले रहा होता हूँ, तो वो हमने काम किया। लेकिन अभी जो है ये फ़लस्तीन वाला मामला, इसमें आप सबको हिस्सा लेना है। 10 रुपीज़ डालो, 20 डालो, 50 डालो, लेकिन अपना हिस्सा शामिल करो, वरना ये याद रखना क़यामत के दिन कोई जवाब नहीं होगा कि तुम्हें मैंने पैसा तो दिया था। अल्लाह ताला फरमाएंगे पैसा तो दिया था, तुमने उसमें से कोई छोटा सा अमाउंट, एक रोटी के बराबर भी किसी को भेजा जब वो लोग मुश्किल में थे? तो प्लीज़ इसको सोचो मेरा बेटा, हम आपको कहीं पे जंगों पे नहीं भेज रहे, आपको किसी और तरह नहीं डाल रहे, लेकिन इतना तो हो सकता है कि आप रोटी के पैसे किसी ऐसी लीगल ऑर्गेनाइजेशन को दे दो जो उन तक खाना पहुंचा दे, ठीक है। तो इसको सोचना बैठ के, ताकि तुम्हें समझ में आए कि मैंने क्या बोला है, कि हमें अपना थोड़ा सा हिस्सा डालना है, 10 रुपीज, 15 रुपीज, इससे ज्यादा बेशक नहीं है, कोई मसला नहीं, लेकिन इतना का हम छुट्टा लगा जाते हैं रोजा, हर रोज, ठीक है ना, तो ख्याल रखना। अच्छा देखो, अब मैं वापस आ रहा हूँ ताकि तुम सब अब फिर फ्रेश हो, तुम्हारे दिमाग में से सब कुछ निकाल दिया है मैंने एक लम्हे को, और अब हम बिल्कुल नए सिरे से काम करते हैं। तुम्हें अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास था प्रोजेक्ट, चेक करते जाना, यही नाम था इस टेबल का, जी सर। और इसका नाम क्या था? सर टीचर। ठीक हो टीचर। गया। अब देखो यहाँ पे इसको पी आई था, पी नेम था, पी आई था, और मैं डेजिग्नेशन नहीं लिखा था कि बहुत ना लिखना पड़े, इससे तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आए। अब देखो P1 में लिखता हूं, बल्कि इसको जो बच्चे दिल लगा के कर रहे हैं मैं आपको बेट करता हूं ये इसका बाकी भी पढ़ाऊंगा, लेकिन ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट था। एक ERD बहुत अहम थी, अगर वो कर ली, ये कर ली, तो इंशाल्लाह अब आप अपने बैचलर्स के लेवल पे किसी से मार नहीं खाओगे, बाकी अल्लाह की मर्जी। P1 IIU डेटाबेस, बल्कि इधर ही पहले लिखता जाता ना, वहां क्यों जा रहा हूँ। P2 TTV डेटाबेस, P3 कोई सी भी लिख लो, मैं कहता हूँ हाईवेज डेटाबेस, ठीक है ना, जो हमारे मोटरवे वगैरह हैं, हाईवेज डेटाबेस। और यहाँ पे मैं 2 टीचर्स लिख लेता हूँ, P1 डॉक्टर आसिम, P2 मिस्टर माजिद। अब नोट करो बेटा, जो सही तरीका था, मैं इसलिए बता रहा था कि बाकी बच्चे होश में आए कि मुश्किल नहीं है, हम कर सकते हैं। देखो जरा, अगर मैं यहाँ पे TID ले आता, फॉर एग्जाम्पल ले आता, जो कि असल में ठीक है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। कैसे नहीं पड़ा जरा देखना, टीचर ID यहाँ पर लाए, P1 को कौन कर रहा है जनाब सुपरवाइज? P1। P2 को कौन सुपर, सॉरी 1, P2 को कौन सुपरवाइज कर रहा है? P2। P3 को कौन सुपरवाइज कर रहा है? सॉरी ये P1 ही था, ताकि मैं तुम्हें ना करीब करीब वैल्यूज दिखाऊं। और P3 को T2। चलो जी T2, ये तो बिल्कुल सही रिलेट हो गया, क्योंकि उस बच्चे को रूल पता था कि जो 1 साइड वाला प्राइमरी की है वो मैनी में जाएगी। एक लम्हे को इसको डिलीट कर देता हूं और गलती से इसकी प्रोजेक्ट ID यानी मैनी वाली को उठा के 1 वाली में ले आता हूं,
और इसको PID कर देता हूं। देखो जो मैं अभी कहता मसला पढ़ने वाला है, क्या मसला पढ़ने, बल्कि इसको एक मिनट वहां से दिखा भी दूं, ये है, और यहां से मसला हम बनाते हैं PID। अब बताओ डॉक्टर आसिम कौन कौन से प्रोजेक्ट सुपरवाइज कर रहे हैं, बताओ जरा। P1, P2. सर P1 P2। P1 P2 P2 कहाँ लिखूं मेरा बच्चा? और माजिद कौन से कर रहे हैं पहले, चलो उनको लिख दूं मैं जरा। हाँ जी माजिद P3. P3 कर। तो अब क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर आसिम के दूसरे प्रोजेक्ट तो गुम हो गया, 3 थे बल्कि 3 लाने, कहां से लाऊं? देखो बेटा, सर अगर मैं ये हरकत करता हूं, P1 डॉक्टर आसिम, और यहां पर लिख देता हूं P2। P2, काम तो बन गया, हाँ या नहीं? जी सर। नहीं सर, डुप्लीकेशन। वेरी गुड डुप्लीकेशन। सर, प्राइमरी की तो डुप्लीकेट अलाउड ही नहीं है सर, ये गलत हो गया, आपने गलत किया है। तो देखो इसीलिए मैंने तुम्हें यहां पर लेकर आया हूं लेक्चर छोड़ के, कि बेटा इसके रूल्स हैं, अल्लाह का वास्ता है कि वो लेक्चर दोबारा पढ़ लो। सर ब्लाइंडली नहीं लेके जा सकते। ब्लाइंडली मैंने देखो आपको शुरू में भी आज आप कहते थे ना कैसे जुड़ेंगे, मैंने कहा मत सोचो, अभी जब बात आएगी तो बताऊंगा। तो नोट करो, अब वो टाइम आ गया है कि मैं डेफिनेशन में से वो लाइन मिटाना चाहता हूं जो मैंने कहा था, नीचे लाइन लगाओ, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा। तो मैंने कहा लॉजिकली रिलेटेड के नीचे से लाइन लगा दो, अभी तुम्हें समझ नहीं आएगा। और आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हें समझ में आ गया, जुड़े हुए हैं आपस में, ये देख, इसको मैं मिटाता हूं, गलत को हटा देते हैं। अब ये दोनों टेबल जुड़े हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं? देखो ये टेबल इससे जुड़ा हुआ है, एक नहीं जी है। सर। तो जुड़ा हुआ कैसे है? लॉजिकली जुड़ा है सर, ये वाली और ये वाली जो एट्रीब्यूट्स है ना, कॉलम्स हैं सर, इनकी वजह से ये जुड़ गया एक दूसरे के साथ। तो देखो Yes, sir. इसको कहते हैं लॉजिकली रिलेटेड, वैसे नहीं जुड़े हुए लेकिन लॉजिकली जुड़े हुए हैं। आज समझ में आई ये वाली बात कि नहीं? जी सर। Yes, sir. वो आपने यस एक लाइन। सर। एक्सीलेंट। चलो अब जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा, देखो बेटा फिर कह रहा हूं, इसका कुछ नहीं है, इसके सिर्फ 7 रूल्स हैं। बाइनरी 1 to 1, बाइनरी 1 to many, बाइनरी many to many, यूनरी 1 to 1, यूनरी 1 to many, यूनरी many to many। और उसके बाद टर्नरी एंड हायर डिग्री का एक ही रूल है। तो अगर आप उस वाले लेक्चर को दोबारा सिर्फ 25-30 मिनट बैठ के पढ़ते हैं, उसको कागज पे हाथ में कागज पकड़ के पेन पकड़ के आप लिखते भी जाते हैं, तो मेरा वादा है, जैसे 2 बच्चे 3 बता रहे हैं ना तेज तेज, आप एक लेक्चर के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आपको, आप में और एक FSC BSc MSc इंग्लिश पास लड़के में क्या फर्क है। किसी ने BSc किया हुआ है, किसी ने FSC किया है, कोई MSc अंग्रेजी है। तो अब देखना ये है कि उनमें और आप में ये फर्क है कि आप टेक्निकल आदमी हो, आप ITM के हो, आप या आप BSIT वाले हो, आप कंप्यूटर वाले हो। तो लिहाजा आपको पता होता है कि अन्नेवा या अंधाधुन एक की कहीं और नहीं लेकर जाते। तो इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि आपकी स्ट्रेंथ बने, आप कभी भी बेवकूफ़ी ना करें कि लोग हंसें कि यार किसने पढ़ाया था। तो उस वाले लेक्चर को दोबारा पढ़ें, और नेक्स्ट टाइम आपका इसमें एक क्विज आने वाला है नेक्स्ट वीक, ये टाइम आपका आज का इंपॉर्टेंट है। आप जरा ये देखिए, इस वाले का एक स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से सारे बच्चे। सर डन। अब मेरी बात सुनो, इसके साथ अपने पास नोट कर लो, कन्वर्ट इट इनटू 3NF। नंबर 1 शो, बल्कि मैं इसको रोकता हूं ताकि यहीं पे ना मैं तुम्हें इसको लिख भी दूं, इसका सवाल फिर तुम इसको लिख लेना। ऑल इन, पहले तुमने ऑल इनॉमलीज बतानी है इसमें, देन परफॉर्म तमाम नॉर्मलाइजेशन। अब आपको तीनों आती है, परफॉर्म, नॉर्मलाइजेशन। ये अब आपका होमवर्क बन गया है। मैं इसको, अब आप इसकी, एक मिनट रुको, स्क्रीनशॉट ले लो। सिर्फ एक दफा आपको देखना पड़ेगा और उसके बाद आप इत्मीनान, सॉरी 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 ये क्या हुआ, हाँ अब आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। वो लेक्चर अभी जाके पढ़ो, तुम्हारा अभी टाइम खत्म नहीं हुआ है, अभी एक क्लास सिर्फ खत्म हुई है, अभी तुम्हारा लैब का टाइम है, उस वाले को देखो और ये वाला होमवर्क जमा कराना है। मैं इसकी भी डेडलाइन डाल रहा हूँ, ठीक है, आज ये जमा हो जाए। ओके सर। अब सब बच्चे अपनी अटेंडेंस लगाएं। CR साहब बैठे हुए हैं क्लास में कि नहीं? जैन भी नहीं है आज?
सर अहमद है। अहमद है? जी सर है। अहमद स्क्रीनशॉट्स ले लो और बाकी बच्चे अपने नंबर्स लिख दें, सिर्फ नंबर, रज नंबर लिखा करो, रज नंबर। हाँ, प्रेजेंट नहीं लिखो, ताकि अगर कहीं पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो फौरी तौर पे यहाँ से वेरीफाई कर लें। और मैं बता दूं कि अब आपकी अटेंडेंस चेक हो रही है, हमारे पास स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं, यानी आज जो है अहमद मुझे अटेंडेंस भेजेगा और ये इस वीकेंड पे जमा हो जाएगी। तो अपनी जान बचाओ सारे, किसी परेशानी में नहीं फंसना।